Hello everyone. Hello everyone. How are you? Hope so everybody will be fine. Yesterday we read about the democracy and equality. We read about the right to equality. The constitution has given some right to us. We are free to live. We are free to do any work which is in favor of the country. We are free to earn our livelihood on equality before law. All the citizens are equal before the law. There is no discrimination on the basis of religion, gender, caste, or place of birth. Everyone is entitled to equal opportunities in all spheres of life. The law gives equal protection to all. But it does not does everyone enjoy equality in all spheres of life? Even after nearly 70 years of independence, unfortunately, the answer is no. It is quite common to see thousands of people are struggling for the equality as they are suffering from untouchability. Yesterday we read two examples of this related to this topic. First one is Shekhu, who is a rag picker. He is a boy of 10 years old. He picks up rags from the garbage, and every morning from 4 to 8, when half the population of the city is still sleeping, after that he works at his father's cycle repairing shop. He wants to go to school, laugh and play like other children, but he is always working. Shiku's parents have also been granted the right to vote, but they do not enjoy the equality of working conditions, hence they are unable to fulfill their basic requirements of family, like as food, shelter, and clothing. Same we read about the Paro. She is a flower seller. Paro who sells flowers at traffic signals from morning to till night. The flower shop owner gives her 1 rupee for each small bouquet. Then she sells at rupees 10. She endangers her life as she runs between the vehicles and pursues people to buy flowers. Paro's parents were forced to leave their village after the well belonging to the so-called lower caste dried. They were not allowed to take water from the well that belonged to so-called upper caste. And Paro's parents also the citizen of India, where the constitution has prohibited discrimination on the basis of religion, caste, and gender or place of birth. But sadly, discrimination on the basis of caste continues to exist in spite of education and awareness, especially in rural areas. गांव के अंदर आज भी हम जाति के आधार पर भेदभाव देख सकते हैं. आज भी जाति के आधार पर बहुत सारे भेदभाव हैं. Another threat to equality is posed by discrimination on the basis of community. Some religious places ban the entry of people belonging to the other communities and castes. Certain communities look down upon others and don't give them jobs or houses. कुछ communities तो ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को अपने घर किराए पर या नहीं देती हैं. ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं. एनसीईआरटी में हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं या एक हस्बैंड वाइफ जो कि नए इस शहर में आए, तो वो लगातार अपने लिए मकान ढूंढ रहे थे. उन्होंने एक हाउस रेंट एजेंट, कमीशन एजेंट से कंसल्ट किया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो उनको एक मकान किराए पर दिलवा दें. लेकिन वो जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर उन्हें मकान देने से इनकार कर दिया जाता था. ऐसा क्यों? बिकॉज
the husband wife belongs to a particular community, and in the region where they were in search of house. People afraid of that particular community are not willing to give them house. वो दोनों मुसलमान थे और इसलिए वो जिस एरिया में मकान ढूंढ रहे थे वो सारा एरिया किसी पर्टिकुलर दूसरे धर्म का था और वहाँ के लोगों ने उन्हें मकान देने से इनकार कर दिया। तो अल्टीमेटली जो कमीशन एजेंट था उसने उन्हें सलाह दी कि आप लोग अपना धर्म जो है वो इस्लाम ना बताकर कुछ और बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। अगर किसी को हमें घर देना है तो हम पैसा देंगे, किराए पर मकान ले रहे हैं, हम कोई गलत काम के लिए नहीं आए, हम जॉब पर्पस से यहाँ पर आए हैं, तो हमें अपनी आइडेंटिटी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वी विल नॉट डू दिस। बट स्टिल दे वर अनेबल टू गेट द हाउस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अंडर द राइट टू इक्वलिटी इन 2 ways। सरकार संविधान में बनाए गए नियमों को अप्लाई कर रही है जिससे कि समाज में सभी तरफ जो है इस समाज में सभी लोग समानता के साथ रहें। इनमें सबसे प्रमुख क्या है? मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब्स। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब्स, सबको समान शिक्षा का अधिकार है। सरकारी स्कूलों में सभी को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। इन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर दोज कम्युनिटीज़ दैट नीड असिस्टेंस। सरकार ने वो सामाजिक समूह जो पिछड़े हुए हैं या जो कि जिनको ऊपर उठाने की ज़रूरत है, जो बैकवर्ड हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, SC, STs एंड OBCs, जैसे कि SC, ST और OBCs के लिए द प्रोग्राम्स हैज़ ऑफ द गवर्नमेंट बी मीनिंगफुल ओनली इफ़ दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल। अब योजनाएं तो सरकार ने बना दी, लेकिन ये तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक कि लोग जो हैं वो उन पिछड़े हुए लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमरस स्कीम्स एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू एलिमेंट्री स्कूल। सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिससे कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। फॉर एग्जाम्पल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सरकार ने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया है। गारंटी एक्ट पास किया है। और मैनी चिल्ड्रन कुड नॉट बेनिफिटेड, स्टिल अ सपोर्टिंग स्कीम ऑफ मिड डे मील हैज़ स्टार्टेड। और जब टीचर्स के रिक्वेस्ट करने पर मिड डे मील शुरू किया गया, उसके बावजूद भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। मोटिवेटेड मैनी पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज फूड एंड न्यूट्रिशियस मिड डे मील वाज प्रोवाइडेड। टीचर्स ने पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि उनके बच्चों के लिए स्कूल में हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल है और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए ताकि उनको पूरा पोषण मिल सके। एज अ रिजल्ट, द एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, द एनरोलमेंट इन स्कूल्स हैज़ इंक्रीज्ड। इसकी वजह से मिड डे मील के कारण स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है बच्चों की वो ज़्यादा होने लगी, यानी कि ज़्यादा लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने लगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्पेशल इन द concrete to liberate द वीकर सेक्शन। आज़ादी के तुरंत बाद आवश्यकता थी कि ऐसा कुछ स्पेशल विशेष किया जाए जिससे कि जो समाज का दलित वर्ग है या जो पिछड़ा वर्ग है उसका विकास किया जा सके, उनको उठाया जा सके, उनको इकोनॉमिकली अब उनकी ग्रोथ हो सके, सोशली उनको इक्वल राइट्स मिल सकें। द फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स imposed by the caste system had to end. Thus,
रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर देम, इसीलिए सरकार ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया टू एंश्योर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल वर्क्स ऑफ द लाइफ so that they could live a life of respect and dignity, ताकि वो सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें. Later on, along with the scheduled castes and the scheduled tribes and other backward classes were also provided the benefits of the reservation. Even for the women's, government had many reservation processes. The reservation was to exist for a limited period, but as its provision we have still not reached a major proportion of population, it is still continuing. कुछ समय के लिए ही रिजर्वेशन को अप्लाई किया गया था, लेकिन ये आज भी चल रहा है. In the beginning, caste system was only for the classification of vocation or occupation based on duty, but later it comes to be based upon the birth and the particular caste. The last one is, let us look at the caste or case of Rahul, who qualified for IIT because of Mr. Anand Kumar, who helps poor children with his Super 30 in Bihar. News report published by NDTV from Rahul to his sir Anand Kumar. Dear answer, thank you. My life will be different because of you. My father is a poor man in Jharkhand, Hazaribagh area. My father goes to Kolkata to work as a laborer. You provided coaching, clothing and food for a year to prepare me for IIT. I will build a hospital and school in my village. I am lucky to have you. Sir, I owe everything to you. We feel happy when we hear about cases like this. It is the duty and moral responsibility of each and every Indian to ensure that all Shekhus and Paros are able to fulfill their dreams of going to school to make a better life. ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम पारो और शेखो जैसे बच्चे के लिए कुछ करें, ताकि वो सब बच्चे भी स्कूल जा सकें, इवन कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके. We feel happy when we hear about cases like this. It is the duty and moral responsibility of all. Our government has adopted various measures. सरकार ने बहुत सारे नियम और कानून बनाए हैं. सरकार शिक्षा के लिए लोन अवेलेबल करवाती है. सरकार रोजगार के लिए स्कीम्स अवेलेबल करवा रही है. लो बजट हाउसिंग इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रही है, ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी घर मिल सके. फ्री लीगल एडवाइस अवेलेबल है विडो पेंशनर्स को, और उसके अलावा सरकार एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है. सरकार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही है टू द नीडी वंस. इवन एडल्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, जहां से कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख मिल सके. लिटरेसी प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन and adult education have gained popularity along with midday meals. The school are providing free uniform and books, stipends, scholarships, medical checkups, etc. Girl students and children from weaker sections have a reserved quota not only in government school but also in the private schools. ना केवल सरकारी स्कूलों में बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी शेड्यूल कास्ट और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोटा है. स्पेशल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर ट्राइबल एंड रूरल चिल्ड्रन टू इंक्लूड देम इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स. वी मस्ट मेक श्योर दैट इंडियन डेमोक्रेसी गोज इन द राइट डायरेक्शन. हम ये कह सकते हैं कि गाँव के बच्चों के विकास के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है. इवन जो ट्राइबल्स हैं उनके बच्चों के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है. और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो लोगों के अधिकारों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जिससे कि
सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले, सब लोग समान रूप से रहें, समान रूप से आगे बढ़ सकें। वेयर ऑल सिटीजन्स आर अवेयर, एनलाइटेंड एंड एजुकेटेड, लेट अस ऑल मेक इंडिया ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। यहाँ सब लोग शिक्षित हों, ज्ञानवान हों, इस सब के लिए चलिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, जिससे कि हमारा जो लोकतंत्र है वो एक और भी ताकतवर सफल लोकतंत्र बन सके। हम लोग निरंतर प्रयास करें, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ सबके द्वारा उठाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि सभी लोगों का, स्पेशली जो हमारे बैकवर्ड जो हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है हमारा, उसका कल्याण हो सके। ये सभी के लिए बेहतर होगा, उससे हमारे देश का विकास होगा।